Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 5th of October 2023. From today's newspaper, these are the topics which we'll be discussing. The number one is about the beneficiaries, that is, the LPG subsidy for the Ujjwala beneficiaries has been raised to rupees 300 rupees. Second, we'll be talking about the three persons which are awarded for the Nobel Prize in the category of the chemistry, what they have done, what is the quantum dot, because of which they have been awarded the Nobel Prize in the field of chemistry. Then we'll be talking about the retribution to the southern state as compared to the northern state, that is the constituency division procedure with respect to the parliamentary election. And then we'll be talking about the women reservation in the parliament. So these are the topics which would be in our discussion video today. Before we move forward, this is our YouTube channel IS Cafe. If you're really liking our initiatives, please do subscribe it, like and share. Now, coming to the main topic about the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, that is the PMUY. There's just a small news given on the front page of the newspaper that the amount, that is rupees 300, has been increased. But what exactly is this scheme, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana? Who are the beneficiaries in the scheme and what is the objective of the government? The number first comes is the Ministry of Petroleum and the Natural Gas. You must remember the ministries associated with the government schemes. Here, the associated ministry is, that is the Ministry of Petroleum and the Natural Gas, introduced the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana as a flagship scheme with the objective of making the clean cooking fuel such as LPG available to the rural and developed households. Let us imagine India's rural area, the areas of the villages, where if you imagine the household things, that is the cooking, they are doing with respect to in the chula. They are not using the LPG cylinders. So when they're working on that, it is not good for their own health. The eyes get badly affected. The respiratory system but get badly affected. And it is also harmful for the environment. So to protect the environment, so to protect the health of the women in the rural areas as well, this scheme has been started by the government with the help of the Ministry of Petroleum and Natural Gas to provide the free LPG connections to the people who comes below the poverty line, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे ये जो चीज है वो प्रोवाइड कराई गई है. ठीक है. So the ministry, let's go with the theory that the Ministry of Petroleum and Natural Gas introduced the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana as a flagship scheme with the objective of clean cooking fuel such as LPG available to the rural and the deprived households which were otherwise using the traditional cooking fuel such as the firewood, coal, cow dung cakes, etc. तो ये जो ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल है, इसके बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं ऑन द हेल्थ ऑफ द रूरल वुमन एज वेल एज ऑन द एनवायरमेंट. So if I talk about the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, it is about providing the free LPG connection to the people below the poverty line. But when someone asks you what is the objective of the scheme and what are the features of this scheme, so there are two things. If you have to write something on the mains, you will be writing about the objective as well as about the features. If you're preparing for the prelims, you must be knowing about the ministry, you must be knowing about who are the beneficiaries and what are the features of the scheme. A kind of a factual information, right? So let's understand the objective of the scheme first. The first objective is empowering the women, protecting their health. As we mentioned, that the traditional fuel what they are using is harmful for the environment, for the health of the women as well. So the most important objective of this scheme comes is
the empowering of the women and protecting their health. Then second, that reducing the number of deaths in India due to unclean cooking fuel. The various report has been showing that the number of deaths in India is increasingly because of the use of the unclean cooking fuel. And the young children which are staying there, which are surrounding their mothers, which are surrounding the family where they are cooking using their traditional fuel, they have they have very severe amount of acute respiratory illness which is caused due to indoor air pollution. You will be thinking that it's very common. It's not that harmful. I'm just requesting you to imagine one example. In winters, you all must have tried in the rural areas to burn that cow dung or the coal just to have a warmth all around you. But always you have done in an open air. On the terrace, just like in the New Year parties, we just do that, the burning things. We burn that coal and we just enjoy that party scene and we feel the warmth over that. So, similarly, in winters, also in the rural areas, people do that. But what I want to say is, usually you have seen the people doing that in the open area, in the terrace or opening the windows or the doors of your house. Why? If you shut it down, the person will get suffocated. The person will have a high chances of death because of the indoor air pollution. Because that gas, that harmful gas contains the gases which causes the respiratory illness in the human body. Clear? Now, features of the scheme. The scheme provides a financial support of rupees 1600 for each LPG connection. बिलो पॉवर्टी हाउस होल्ड जो है उसके नीचे हर एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए का फाइनेंशियल जो सपोर्ट है इसमें दिया जाता है अलॉन्ग विद अ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन. तो बेसिकली एक तो आप डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन ले रहे हो, उसी के साथ जो उज्ज्वला 2.0 है उसमें आपको पहला जो रीफिल है यानी कि सिलेंडर को फिर से भरवाने का जो है वो फर्स्ट रीफिल जो होगा वो फ्री दिया जाएगा टू द बेनिफिशियरी. लेकिन अब जब आपका ऑब्जेक्टिव है you're protecting the health, you're protecting the health of the children, the women, the environment, you're providing the free LPG connections, then what are the concerns? Why it is so concerning? What is the tension? देखो कंसर्न ये है, डेटा ये बोलता है कि जितने भी आपके पास बेनिफिशरीज है स्कीम के अंदर उन्होंने एक बार वो मुफ्त का एलपीजी सिलेंडर लिया है उसके बाद उसको फिर से भरवाया नहीं, यानी उनको उस चीज की हैबिट नहीं हो रही है. उनको फ्री में मिला, उसने वो ले लिया, बट दे स्टिल नॉट substituting that LPG cylinder with their traditional fuel system. So refill fewer than 4 LPG cylinders during those at buy setting. So one in the 4 beneficiary did not use any LPG cylinder. और 4 में से अगर एक जो है उन्होंने तो ये डेटा है कि अगर हम एवरेज देखें तो 4 में से एक बेनिफिशियरी ऐसा जिन्होंने तो उसको यूज ही नहीं किया, वो एज इट इज वहां पे पड़ा हुआ है. रीजन कुड बी मैनी कि उनको डर लग रहा है कि इट विल ब्लास्ट हो जाएगा, दे डोंट नो अबाउट द अवेयरनेस हाउ टू यूज इट, they are not friendly about using it, they are comfortable with the traditional way, and there can be many multiple reasons, or it could be hatred towards the government or anything, right? So the rising LPG cylinder prices is also a huge concern. Now let's talk about the subsidy expenditure and the international factors which are impacting the LPG prices over here. So if I talk about the subsidy expenditure, look at the date. From the January 2018 to March 2023, the rate of these subsidized LPG cylinders has increased by 82%. प्राइस बढ़ना एक तरफ है, 50% से भी ज्यादा 82% तक का जो प्राइसेस का बढ़ा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइसेस है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. अब इसका जो बेनिफिट है, ये जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, इसका क्या है कि सबसे पहले तो बेनिफिशियरी को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, यही बेनिफिट है. सेकंड, द बेनिफिशियरी आल्सो रिसीव अ सब्सिडी on the first 6 refill of 14.2 kg cylinders और the 8 of 5 kg cylinders. यानी कि अगर आपका सिलेंडर 14.2 kg का है तो पहले के जो 6 सिलेंडर है वो फ्री में मुफ्त में आपको रिफिल होंगे और जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उसकी शुरू के 8 रिफिल आपके लिए फ्री में है.
ये फैक्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। So the beneficiary can opt for the EMI facility as well to pay for the cost of stove and first refill. The beneficiary can also join the PAHEL scheme to receive the subsidy amount. अब ये सब्सिडी के अंदर जो पैसा बेनिफिट को मिलता है, बेनिफिशियरी को मिलता है, उसके लिए वो पहल स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। अब नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाट इज दिस पहल स्कीम? पहल स्कीम यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, यानी कि तुरंत लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तुरंत आपके अकाउंट के अंदर वो पैसा जो है वो आ जाएगा। दिस इज योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। So it was launched on 1st of June 2013 और फाइनली 291 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर कवर किए गए। It required the consumer to mandatorily have an आधार नंबर फॉर, देखो ये तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, मैंडेटरी आपको आधार लिंक करने के लिए वहां पे बोला ही बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पहल स्कीम। अब ये जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना है उसकी जो दो फेजेस है उसको हम जान लेते हैं। एक पहला फेज और उसके बाद जो आपके पास उज्जवल 2.0 वाला जो फेज आया था वो क्या है। पहले फेज जो था 2016 1 मई को चालू हुआ। द टारगेट अंडर द स्कीम वाज टू रिलीज 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस टू द deprived हाउसहोल्ड बाय मार्च 2020। देन उज्जवल 2.0 के अंदर एक स्टेप ये आगे गए। आप इसके अंदर फैक्ट जो है देख लीजिएगा ना। सेकेंड थिंग, हमने नोबेल प्राइज पढ़ा किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, फॉर डिस्कवरी फॉर मेकिंग ऑफ द mRNA वैक्सीन। देन वी हैव सीन द फिजिक्स एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 3 पर्सन है, यहाँ पे उनके नाम है, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दीज नेम्स, दिस इज वेरी टिपिकल फॉर मी, बट हमारा फोकस होगा कि क्वांटम डॉट क्या है, क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों को जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री की कैटेगरी में, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यू टू द क्वांटम डॉट। इनकी जो डिस्कवरी है दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटम डॉट। अब ये क्या है? These are the smallest component of nanotechnology. Please do connect it with the GS paper 3 of your UPSC mains, science and technology, the topic nanotechnology. So in this nanotechnology, these are the smallest components, spread the light from televisions and LED lamps and can guide surgeons also when they are removing the tumor thing. तो हम इस क्वांटम डॉट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो कोई भी अगर एलिमेंट होता है, इफ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट, इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। कैसे? एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर में आपके पास न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, यहीं पे आपके पास प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही फास्ट स्पीड से घूम रहा होता है। तो किसी भी एलिमेंट में कितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पता चलती है। तो बेसिकली जब मैटर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, नैनो डायमेंशन, तो प्रॉपर्टीज जो है उसकी साइज पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर जितना छोटा होगा, जितना टाइनी होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर उतने ही स्क्वीज्ड होंगे, राइट? So the smaller a particle, the more its electrons are squeezed together and that affects its properties. So such particles whose size determines the behavior, उनको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो साइज है उनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्वांटम डॉट बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? जो एलईडी लैंप है आप उसको यहाँ यूज कर सकते हो, करेक्ट। हमने इसको सर्जन मेडिकल फील्ड के अंदर बात करी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी इसकी जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। Yep. Now, coming to the third topic, that is the retribution for the South, accolade for the North. If you talk about the retribution for the South and accolade for the North, इंडिया का फेडरल सिस्टम समझो। फेडरल मीन्स द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इंडिया है उसमें सेंट्रल लेवल पे एक सरकार है और स्टेट लेवल पे एक सरकार है। So when we are saying that the powers are divided between the center and the state, such type of government is your federal government. That means, I repeat, that the powers are distributed between the center and the state. That type of a government is known as the federal government. So when I talk about the federal democracy in India,
तो यहाँ पे जो स्टेट की पॉपुलेशन साइज है उसको बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल वाइज और इकोनॉमिक वाइज सिग्निफिकेंस मिलता है। ये आपके पास पूरा एडिटोरियल का क्रक्स या जिस्ट है। इस पूरे एडिटोरियल में यही बोला गया है कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स है वो डिवाइडेड है। अगर पावर्स डिवाइडेड है तो हर एक स्टेट में राइटर कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो अलग है। अब इंडिया का जो फेडरल डेमोक्रेसी है उसमें पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पॉलिटिकल वाइज और इकोनॉमिक वाइज। पॉलिटिकल वाइज कैसे है और इकोनॉमिक वाइज कैसे वो हम देखेंगे। बट यहाँ पे कंसर्न किसका बता रहा है, इंडिया में जो सदर्न स्टेट है दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, राइट, they are just immensely doing good in the growth and development। बट नॉर्दर्न स्टेट्स है आपके पास, जैसे कि नॉर्थ स्टेट है, यूपी बिहार जैसे स्टेट है, वो थोड़े से बैकवर्ड है, वहां पे जो पॉपुलेशन है अभी भी ज्यादा है। तो अब राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा है। उनको आपके पास जो फाइनेंशियल कमीशन का जो डिसोल्यूशन होता है पैसे का, वो भी वहां पे इनको ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो कंसर्न है जिसमें सदर्न स्टेट कुछ अच्छा करने की वजह से उनको पनिश किया जा रहा है। अच्छा करना इन द सेंस दे आर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, बट बिकॉज ऑफ दैट दिस गुड स्टेप दैट इज दे आर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, अल्टीमेटली उनको लॉस मिल रहा है, क्योंकि उनको पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, उनका जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन होना चाहिए वो भी कम हो रहा है। So this is the gist of this article, that the real retribution for the South, that means the punishment for the South and accolade for the North. Now, let's go with the theory once, that in the Indian federal democracy, a state's relative population size gains political and economic significance. The strong linguistic identities and the regional renaissance in the political and the social sphere propelled the southern state to scale the greater heights in all the spheres of development. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया के जो सदर्न स्टेट है वहां पे बहुत ही ज्यादा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज है, रीजनल रेनेसा हो रहा है कि हमारा स्टेट, हमारी आइडेंटिटी, हमारा रीजन, ठीक है। वहां पे जो पॉलिटिकल और जो सोशल स्पेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। बट जो नॉर्दर्न स्टेट है वो बहुत ही कंट्रास्टिंग है सदर्न स्टेट के कंपेयर में, वहां पे आपको डेवलपमेंट अभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन पार्लियामेंट का, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे कि पहली बात तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि मान लो आपके पास लोकसभा है, लोकसभा के अंदर आपके मान लो कि 545 या 545 सीटें हैं, तो यहाँ पे हर स्टेट को कितनी सीट मिलेगी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पॉपुलेशन के आधार पे बनती है। आई रिपीट कि पार्लियामेंट जो है उसका जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हर स्टेट से आती है, यानी हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बैठते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती है। मतलब ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको ज्यादा मिलेगी, अगर केरला स्टेट में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कम मिलेगी। तो इट इज with respect to the population in the equal proportion to the population। तो आर्टिकल 81 बोलता है that Indian constitution stipulates that Lok Sabha constituents in the country should be equal by the size of the population। Based on the 1971 census, the number of Lok Sabha was state was frozen, लेकिन पॉपुलेशन क्राइटेरिया बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सदर्न स्टेट में घट रही है। तो ये इशू को देखते हुए 1971 का जो सेंसस था, यानी 1971 में जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी उसी आधार पे इन सीटों को फिक्स कर दिया गया है आगे आने वाले 25 साल तक। और फिर 42nd अमेंडमेंट आया जिसने ये बोला कि 84th अमेंडमेंट कि 2026 तक हम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको डिफाइन करने के लिए जिस पॉपुलेशन को बेस मानेंगे वो 1971 की सेंसस को ही मानेंगे, ना कि अब मानेंगे। रीजन भी क्योंकि डिफरेंस है आपके पास,
जो सदर्न स्टेट है, जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, और जो आपके पास हिंदी स्पीकिंग नॉर्दर्न स्टेट है, वहां पे पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है. So between the 1971 and 2011, the proportion of the population of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, UP, they increased from 44 to 48%. यानी अगर हम नया पॉपुलेशन सेंसस देखेंगे तो 23 जो सीट है वो कम पड़ जाएगी सदर्न स्टेट के लिए, और कम से कम नॉर्दर्न स्टेट में 37% सीटें बढ़ जाएगी, जो कि एक इम्बैलेंस हो जाएगा. तो द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट है. पर इसका इकोनॉमिक जो एंगल है वो देखते हैं फिस्कल ट्रांसफर में. जब फिस्कल ट्रांसफर होता है यानी यूनियन गवर्नमेंट से आपके पास जब स्टेट में आप पैसों का डिवोल्यूशन करते हो फाइनेंस कमीशन की मदद से, तो उसमें भी क्या होता है कि पहली जो इनिशियली फाइनेंस कमीशन है, जो कि हर 5 साल में आपके पास फाइनेंस कमीशन बनती है, उसने पॉपुलेशन को आधार माना. ठीक है कि जो पॉपुलेशन है उसको आधार माना, लेकिन 1971 में ये फ्रीज हो गया. अब 1971 में फ्रीज हो गया, लेकिन अभी जो लास्ट फाइनेंस कमीशन है वो कह रही है कि नहीं, हम जो नया पॉपुलेशन सेंसस है उसको आधार मानेंगे, डिक्लाइन हो रहा है. तो अगर नया पॉपुलेशन को माना तो सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कम है, सदर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन वो कम है. अगर पॉपुलेशन कम है तो उनको जो पैसा है यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है वो कम मिलेगा, और जो नॉर्दर्न स्टेट है इनका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है, पैसा है वो ज्यादा मिलेगा. तो इट्स काइंड ऑफ अ पार्शियलिटी. तो ये कंसर्न है जिसको राइटर जो है एडिटोरियल के थ्रू आपको बताना चाहिए. Now coming to the last topic about the women quota panchayats to the parliament. It is not a kind of a detailed discussion. आप इसको बहुत ब्रीफ में समझ सकते हो. 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आया था, दैट इज पंचायत से रिलेटेड और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, उसमें वुमेन को 33% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया, राइट. तो अभी रिसेंटली बहुत ही लैंडमार्क बात ये हुई है कि एक बिल था वुमेन रिजर्वेशन की, पार्लियामेंट के अंदर भी वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए एक बिल आया था, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लग चुका है. और 106 अमेंडमेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वुमेन्स रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एज वेल. और ये बहुत ही लैंडमार्क है क्योंकि 30 साल हो गए हैं पंचायत वाले इलेक्शंस को, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ एक रिव्यू दिया गया कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट जो है रिजर्वेशन को वो यहाँ पे दिया गया है. सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डोंट रीड फ्रॉम द स्लाइड, जस्ट राइट डाउन दैट what would be the significant impact. So we can write here that what would be the significant impact of giving more representation to women in legislature. Just write down an answer on it and then we can discuss tomorrow. Okay. So that's it for today's discussion. If you're liking our videos, please do subscribe our channel, like and share. Thank you so much.